اہم خبر کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ بریک ڈاؤن سے امن و امان کے مسائل جنم لے سکتے ہیں اور ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے بجلی فراہم کرنے والی کمپنیوں کو خط لکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہم سے جی آزاد، ہمیں آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، محکمہ داخلہ سندھ نے بجلی فراہم کرنے والی جو کمپنیز کو خط ارسال کیا۔ یہ خط محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جو کہ الیکٹرک ہیسکو حیدرآباد ہیسکو سکھر کو بھی ارسال کر دیا گیا ہے۔ اس خط میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت محرم الحرام جو امن امان کی صورتحال کا معاملہ ہے اور اس وقت جو ہے کہ الیکٹرک اور دیگر جو بجلی فراہم کرنے والی کمپنیز ہیں ان کی جانب سے بجلی کی بدترین جو لوڈ شیڈنگ کی جائے، جس سے امن امان کی صورتحال خراب ہونے کا بھی خدشہ موجود ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے خط میں واضح طور پر احکامات دیے ہیں کہ فوری طور پر محرم کے مہینے بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ محرم کے مہینے میں بجلی کے بریک ڈاؤن میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس حوالے سے تمام جو کمپنی بجلی فراہم کرنے والے ان کو کہا گیا ہے کہ بریک ڈاؤن میں امن امان کے مسائل جنم لے سکتے ہیں اور ناخوشگوار واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے فوری طور پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے عمل کو یقینی بنایا جائے۔ یہ خط اصغر مہر محکمہ داخلہ کے سیکشن افسر ان کی جانب سے تینوں کمپنیز کے سی او کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ جی آزاد، بتائے گا کہ خط تو ارسال کر دیے گئے ہیں، خط کا کوئی جواب آیا یا اس بارے میں کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، یہ خط تینوں کمپنیز کو موصول ہو چکا ہے، جس میں کہ الیکٹرک کمپنی کراچی ہے، اس کے علاوہ ہیسکو حیدرآباد اور سیپکو سکھر ہے، ان تینوں کو موصول ہو چکا ہے۔ یہ خط امن امان کی صورتحال کے پیش نظر محکمہ داخلہ سندھ نے ارسال کیا ہے، کیونکہ اس وقت جو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے مونسون کی، اس لحاظ سے بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، بریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جس سے باعث خاص طور پر شہری علاقوں میں امن امان کی صورتحال کا جو خراب ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ اس لحاظ سے ان تینوں کمپنیز کی جانب سے تاحال کو واپسی جواب تو نہیں دیا گیا، لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ یعنی بریک ڈاؤن کا سلسلہ اس وقت بھی بدستور جاری ہے اور محکمہ داخلہ کے خط پر تاحال عمل درآمد کو یقینی نہیں بنایا گیا ہے۔ جی آزاد، بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے % اس پر عمل ہوگا؟ جی بالکل، محکمہ داخلہ جس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صوبے بھر میں امن امان کی صورتحال کو بہتر رکھنا اور خاص طور پر جو اس وقت محرم کا سلسلہ چل رہا ہے، اس حوالے سے بھی محکمہ داخلہ نے ایڈوانس میں ان کمپنیز کو آگاہ کیا کہ کیونکہ مجالس ہوتی ہے رات کے وقت میں اور خاص طور پر 9 اور 10 محرم کو ماتمی جلوس نکلیں گے، اس لحاظ سے بھی محکمہ داخلہ سندھ نے اسے قبل ہی آگاہ کر دیا تینوں کمپنیز کو کہ بجلی کی بلا تعطل جی بہت شکریہ آزاد نوہریو آپ کا۔ کراچی میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ جون میں چلائی جانے والی پولیو مہم کے دوران 25,000 سے زیادہ والدین نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا ہے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر سندھ کے کوارڈینیٹر ارشاد علی سوڈھر کی والدین کو بچوں کو قطرے پلانے کی درخواست۔ مزید جانتے ہیں میر کیریو کی اس رپورٹ میں۔ حکومت کا پولیو کے قطرے پلانے پر اصرار، والدین کا انکار۔ پاکستان میں تاحال کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ رواں برس سندھ میں پولیو وائرس کے 2 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کماڑی میں خصوصی پولیو کے قطرے پلانے کی خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ جون میں مہم کے دوران 25,000 سے زائد والدین نے قطرے پلانے سے انکار کر دیا۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر سندھ کے کوارڈینیٹر ارشاد علی کہتے ہیں متعدد بار ٹیمیں بھیجنے کے باوجود بھی کراچی کے 7 اضلاع میں جون میں 25,000 سے زائد والدین نے قطرے پلانے سے انکار کیا۔ تو بہت بڑا نمبر ہے، جس کی وجہ سے ضروری ہے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان پورے سے اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر والدین کو اپنے بچوں کو ویکسینیشن کروانی چاہیے۔ ارشاد علی کہتے ہیں 25,000 سے زائد والدین کی طرف سے پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرنے کا مطلب وائرس کو دعوت دینا ہے۔ تو ہمارا جو اسٹل ریفیوزلز تھے، جو ساری ایکٹیویٹی کے باوجود بھی ریفیوزل رہے، وہ 25,000 سے زائد تھے۔ اب 25,000 سے زائد ریفیوزل صرف کراچی میں اگر رہ جائیں، وہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ویکسینیشن نہ کرنے دیں، تو نیچرلی وائرس کے لیے یہ جو دعوت دینے والی بات ہے۔ واضح رہے کہ جون میں کماڑی سے 3 سالہ بچی کے پولیو وائرس کے سبب معذور ہونے کا کیس سامنے آیا تھا، جس کے بعد کماڑی میں انسداد پولیو کی خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ضلع کماڑی کے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو 13 جولائی تک پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ کیمرہ مین حیدر علی کے ساتھ میر کیریو، کراچی۔ جی ہاں، یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ جون میں چلائی جانے والی پولیو مہم کے دوران 25,000 سے زیادہ والدین نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا ہے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر سندھ کے کوارڈینیٹر ارشاد علی سوڈھر کی والدین کو
बच्चों को कतरे पिलाने की दरख्वास्त भी सामने आई और वालिदैन से इल्तमास की गई कि वो बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। इस पर हमारे साथ डॉक्टर लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। जी हाँ, यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं आपको डॉक्टर लियाकत अली, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अपना मौक़िफ़ दीजिएगा, क्या कहेंगे आप इस नाअहली पर? अच्छा जी, जैसे आपने बताया कि अभी यहाँ कराची में भी केसेस आना शुरू हो गए हैं। कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में भी केस हुआ है। इसमें हमारा ख़ास पैगाम और लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि पोलियो के कतरे और वैक्सीनेशन को अप टू 60-70% तक पहुंचाएं। अगर वैक्सीनेशन और पोलियो के कतरे दोनों ऊपर जाएंगे तो हम लोग बच सकेंगे। आपको पता है कि एनवायरमेंटल सैंपल पूरी कराची में पॉजिटिव है, जहाँ पे भी आप सैंपल लेंगे हर जगह पे पॉजिटिव है। हाई रिस्क पे सिंध गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, मगर जब तक पब्लिक खुद इंटरेस्ट नहीं लेगी और बाकी इदारे इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट पूरी पब्लिक को है कि कोऑपरेशन करें, पोलियो टीम के साथ वैक्सीनेशन करवाएं, अपने बच्चों की जो भी सेहत के हैं वो खास स्पेशली वैक्सीन के ऊपर जोर दें। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, वालिदैन के इनकार की वजह क्या है? तालीम की कमी है या फिर कोई और वजह है? देखिए जी, कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हैं, जो मिथ्स हैं, लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट है कि अभी तक इस वैक्सीन में कुछ शामिल है, पर ऐसा कुछ है नहीं, तहकीक हो चुकी है। मगर कुछ हमारे खास लोगों की फतवा भी है इस बारे में कि किसी किस्म की कोई चीज़ इस वैक्सीन में नहीं है, बेगैर जैसे कि वैक्सीन करवाएं। मगर कुछ लोगों का माइंड अभी तक पढ़ाई की वजह से, जहालत की वजह से थोड़े से कमज़ोर है, वो मानते नहीं है, उसी वजह से हम अभी तक ये तकलीफ में हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि अगर आवाम में इसी तरह का शऊर अगर उजागर नहीं होता तो क्या ये केसेस बढ़ सकते हैं? जी, पूरी कराची के एनवायरमेंट सैंपल पॉजिटिव है। अगर यही हाल रहा तो अल्लाह न करे जो कच्ची आबादीज़ हैं पोश एरिया के अलावा वो हाई रिस्क पे हैं और हम पहले से मेडिकल के इश्यूज में फंसे हुए हैं। पूरी लोड आपने देखा है डिजीज का कितना बढ़ चुका है, ये कितनी खतरनाक बीमारी है, जिंदगी भर बंदा फंस जाता है इसमें। फैमिली इफेक्ट होती है, मोहल्ला इफेक्ट होता है, पूरा खानदान इफेक्ट होता है इसमें। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर मोहम्मद अली रोशनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बताइएगा क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे इस पर? वालिदैन की जानिब से नाअहली दिखाई जा रही है और केसेस जो हैं पोलियो के उनमें इजाफा हो रहा है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पोलियो जो बीमारी है इस मुल्क में एक नासूर है। हमें अपने कौम के बच्चों को बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। मेरे ख्याल में इस पूरी कौम को, हुकूमत की तमाम इदारों को, मुतलका तमाम इदारों को वन पेज पे होना चाहिए और वन पेज पे हैं भी और काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि वालिदैन को ख़ास तौर पे जो कच्ची आबादियाँ वहाँ पे इस बात की अवेयरनेस रेजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पोलियो के कतरे हर बच्चे को मैसर होने चाहिए और पहुँचाने चाहिए और उनको पीना चाहिए। क्योंकि अगर हमने आने वाली कौम को बचाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए जाएँ। जी मोहम्मद अली साहब, आप ये बताइएगा कि पोलियो के कतरे ना पिलाने से बच्चों को मुस्तकबिल में किन अमराज का सामना करना पड़ता है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो माजूरी से लाहक हो जाते हैं, उसके बाद उनका करियर जो है वो खतरे पे आ जाता है। जाहिर सी बात है कि फ्रस्ट्रेशन, एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बच्चे गुजर रहे होते हैं, जो कि बहुत, एक घर में अगर 4 बच्चे हैं और किसी एक बच्चे को पोलियो हो गया है तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा सारी जिंदगी ट्रॉमा की सूरत हाल में अपनी जिंदगी गुजारेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। बेचारे वालिदैन के लिए बहुत तकलीफ दे अमल होता है ऐसे बच्चे को संभालना करना, और उस बच्चे की अपनी जिंदगी के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। तो मेरे ख्याल में अगर किसी के बच्चे को पोलियो है तो उसके वालिदैन से पूछें कि उनके दिल पे क्या गुजरती है। जी, तो अभी शुरू के सिम्टम्स बताइएगा इसके पोलियो के। देखिए, सिम्टम्स तो देखें सबको पता है, क्योंकि टीवी पे जिस तरह से जो कैंपेन चल रही है हुकूमती इदारों की जानिब से, उसमें तो बिल्कुल क्लियर है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से होता है। अब तो पोलियो पे बाकायदा तशखीस हो रही है, रिसर्च हो रही है, इससे पता भी चल रहा है कि पोलियो को खत्म करने के लिए क्या कुछ काम हो रहा है। अब इसके सिम्टम्स तो यही है कि आप बर वक्त जो है इसका बच्चे का चेकअप कराएं। इसकी जो सिर्फ पोलियो ही नहीं, मैं तो कहता हूँ दीगर जो बीमारियां हैं बच्चों की, उसकी वैक्सीनेशन टाइमली हो जानी चाहिए, ताकि आपको वो वक्त ना देखना पड़े जिससे आप कर्ज से गुजरें और आप अपने बच्चे को तकलीफ न देखें। जी मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी आसिफ खान जोजी समाजी रहनुमा है, चेयरमैन लोकल ज़ुकात और शर, हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात देंगे हमें। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी आप बताइएगा क्या कहेंगे इस बारे में आप?
جی السلام علیکم. دیکھیں جی, پولیو ایک ایسا مرض ہے جس سے ہم ایک 3 دہائیاں ہو گئی, 4 دہائیاں ہو گئی ہم مسلسل لڑتے ہوئے آ رہے ہیں جی لیکن پبلک کا کوآرڈینیشن ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو ابھی تک مکمل نہیں کر پائے. پولیو کی وجہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے معذور بھی ہو رہے ہیں, ہمارے بچوں میں دیگر بیماریاں بھی آ رہی ہیں اور زندگی بھر کی محتاجی ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ابھی تک لوگوں کو اس چیز کو سمجھانے کا طریقہ نہیں آیا کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو مینیج کریں. ہمارے لوگ یا تو اس کو مذہبی سطح پر کسی اور جگہ ڈائیورٹ کر دیتے یا تو میڈیکلی اس کو کسی اور وے میں لے کے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے آگے چل کر یا تو بانجھ ہو جائیں گے یا چیزوں کو پروپیگنڈا کر کے پھیلایا جاتا ہے تاکہ یہ پولیو کی جو بیماری ہے وہ ہمارے ملک سے ختم نہ ہو سکے. ریسنٹلی 7 سے 8 کیس ابھی آ چکے ہیں پاکستان کے اندر, جو کہ ایک تشویشناک بات ہے. جی لوگوں کو چاہیے, ہماری عوام کو چاہیے کہ پولیو کے لیے لازم بلازم ہر کمپین میں اپنا کردار بھی ادا کریں, اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائیں اور اس میں سماجی ہماری جتنی بھی شخصیات ہیں چاہے سب کو چاہیے کہ وہ مل جل کر اس کاز میں جی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اپنے ناظرین کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں, بچوں کے پولیو کیسز جو ہیں وہ مزید بڑھ رہے ہیں اور اسی پر تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر لیاقت علی موجود تھے, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, اور ہمارے ساتھ محمد علی روشنی بھی موجود تھے, انہوں نے بھی ہمیں تفصیلات کے ساتھ آگاہ کیا, اور اسی کے ساتھ چیئرمین لوکل زکوٰۃ اور اشر آصف خان بھی موجود تھے. بہت شکریہ آپ تینوں کے وقت کا. محمد علی روشنی نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا ہے. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک آگے بڑھنے کے بلیٹن میں اہم خبر کے ساتھ پاکستانی ایئرپورٹس پر بین الاقوامی پروازوں کے مسافروں کی تیز ترین امیگریشن کے لیے ای گیٹس لگانے کا فیصلہ کیا گیا. ای گیٹس لگنے سے مسافروں کو تیز ترین امیگریشن سروس مہیا ہو سکے گی. جی ہاں, یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو, پاکستانی ایئرپورٹس پر بین الاقوامی پروازوں کے مسافروں کی تیز ترین امیگریشن کے لیے ای گیٹس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ای گیٹس لگنے سے مسافروں کو تیز ترین امیگریشن سروس مہیا ہو سکے گی. پاکستانی ایئرپورٹس پر بین الاقوامی پروازوں کے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے. بین الاقوامی پروازوں کے مسافروں کی تیز ترین امیگریشن کے لیے ای گیٹس لگانے کا فیصلہ سامنے آیا, جو کہ ای گیٹس لگنے سے مسافروں کو تیز ترین امیگریشن سروس مہیا ہو سکے گی. اور دوسری جانب مسافروں کو پاسپورٹ ای گیٹس پر سکین کرنے ہوں گے. اس سے امیگریشن میں وقت بھی بچے گا. اور سول ایوییشن نے ٹینڈر بھی جاری کر دیا ہے. جی ہاں, اہم خبر ہے اور خوشخبری بھی ہے. پاکستانی ایئرپورٹس پر بین الاقوامی پروازوں کے مسافروں کی تیز ترین امیگریشن کے لیے ای گیٹس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تفصیلات کے لیے بات کریں گے شعیب مختار سے. بتائیے گا شعیب, کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ جی بالکل, پاکستانی ایئرپورٹ پر بین الاقوامی پروازوں پر سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ایک بڑی خوشخبری جو ہے آج سامنے آئی ہے. بین الاقوامی پروازوں کے مسافروں کی تیز ترین امیگریشن کے لیے ای گیٹ لگانے کا فیصلہ جو ہے تمام ایئرپورٹ پر پاکستان کے کر لیا گیا ہے. ای گیٹ لگنے سے جو ہے مسافروں کو تیز ترین امیگریشن سروس جو ہے مہیا ہو سکے گی, جبکہ مسافروں کو پاسپورٹ ای گیٹ پر اسکین کرنے ہوں گے. اس سے امیگریشن میں وقت بچے گا. سول ایوییشن حکام کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل بارڈر کنٹرول سسٹم سروس مہیا کرنے والی کمپنیوں سے باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں. اس ضمن میں جو ہے ٹینڈر بھی جاری کر دیا گیا ہے. ای گیٹ بارڈر کنٹرول سسٹم پہلے مرحلے میں کراچی, لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر نصب کیے جائیں گے, جبکہ سول ایوییشن نے دلچسپی رکھنے والی کمپنیوں سے 13 اگست تک جو ہے درخواستیں طلب کی ہیں. ای گیٹ منصوبے سے ایئرپورٹ پر امیگریشن کے لیے لمبی لائنوں سے مسافروں کی جان چھوٹ جائے گی. جی بہت شکریہ شعیب مختار آپ کا.
शहर में गैर कानूनी तामीरात और रुकन सूबाई असम्बली सैयद एजाजुल हक का वज़ीर आला सिंध को ख़त, कहा कि SBCA के अमले ने बिल्डर्स के साथ मिलकर औरंगी का नक्शा बिगाड़ दिया, एक्शन नहीं लिया गया तो एहतजाज करेंगे। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट करेंगे। अहम खबर है, शहर में गैर कानूनी तामीरात की वजह से रुकन सूबाई असम्बली सैयद एजाजुल हक को वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख दिया गया है और ये ख़त लिखा है रुकन सूबाई असम्बली सैयद एजाजुल हक ने वज़ीर आला सिंध को, जिसमें कहा गया है कि SBCA के अमले ने बिल्डर्स के साथ मिलकर औरंगी का नक्शा बिगाड़ दिया है, एक्शन नहीं लिया गया तो एहतजाज करेंगे। जी हाँ, एहतजाज का भी कहा गया है और ये एहतजाज कहा गया है शहर में गैर कानूनी तामीरात की वजह से। कहा गया कि SBCA के अमले ने बिल्डर्स के साथ मिलकर औरंगी का नक्शा बिगाड़ दिया है, जिस पर एहतजाज की धमकी भी दी गई है। दूसरी जानिब इसके लिए ख़त भी इरसाल कर दिया गया है। ख़त लिखा गया है वज़ीर आला सिंध को रुकन सूबाई असम्बली सैयद एजाजुल हक की तरफ से और उन्होंने कहा है कि SBCA के अमले ने बिल्डर्स के साथ मिलकर औरंगी का नक्शा बिगाड़ दिया है, एक्शन लिया जाए और अगर एक्शन इस पर नहीं लिया गया तो एहतजाज भी करेंगे। SBCA का अमला रिश्वतखोर निकला है, MPA की जानिब से मज़ीद कहा गया। जी हाँ, आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, SBCA के अमले ने बिल्डर्स के साथ मिलकर औरंगी का नक्शा बिगाड़ दिया है। रुकन सूबाई असम्बली की जानिब से कहा गया है, ख़त लिखा गया है। ख़त में कहा कि ख़त लिखा है सैयद एजाजुल हक ने वज़ीर आला सिंध को और रिहायशी इमारतों पर शादी हॉल तामीर करवा दिए गए। ख़त का मतन है ये। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, ख़त के मतन में कहा गया है कि रिहायशी इमारतों पर शादी हॉल तामीर करवा दिए गए हैं और नक्शा भी बिगाड़ दिया गया है। SBCA के अमले ने बिल्डर्स के साथ मिलकर औरंगी का नक्शा बिगाड़ दिया है। एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा क्या कहा गया मज़ीद ख़त में और क्या जवाब मौसूल हुआ अभी तक? जी बिल्कुल, आवाम की जो है वो सुनवाई महकमों में नहीं हुई तो देखा ये जा रहा है कि शहर में MPA जो है वो निकल के बाहर आ गए हैं और देखा जा रहा है कि अवामी शिकायत जो है वो अब दर्ज करवाई जा रही है इलाके के MPA के पास और वो जो है वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। PS 121 के MPA हैं सैयद एजाजुल हक, उनकी जानिब से जो है चीफ मिनिस्टर सिंध को खत अरसाल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि SBCA का औरंगी टाउन का जो अमला है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का, वो खुलेआम जो है वो रिश्वत लेके गैर कानूनी तामीरात करवा रहा है। साथ साथ वो खत जो है वो डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ डिप्टी कमिश्नर वेस्ट को भी अरसाल किया गया है। उसमें बताया गया है कि रिहायशी प्लॉट पे जो है बगैर अप्रूवल के शादी हॉल तामीर करवाए जा रहे हैं, गैर कानूनी प्लॉट डलवाए जा रहे हैं, पोर्शन माफिया सरगर्म है। औरंगी टाउन में पोर्शन जो है वो दर्जनों पोर्शन बनवाए जा रहे हैं। अवाम दरखास्त लगा लगा के जो है वो थक चुकी है। SBCA के कंप्लेन सेल हो चाहे DG का कंप्लेन सेल हो, कहीं पे भी जो है वो अवामी शिकायत का ज़ाला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके बायस जो है वो MPA सैयद एजाजुल हक अपने हल्के की अवाम के लिए जो है वो मैदान में आए हैं और पहले मरहले में जो है उनकी जानिब से खत लिखा गया है ताकि आगाह किया गया है तमाम मुतल्लिका हुक्काम को। चीफ मिनिस्टर सिंध को जो है वो दरख्वास्त की गई है कि वाक़े के खिलाफ जो है वो तहकीकात करें, DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुलव्विस अमले के खिलाफ जो है वो महकमा जाती कार्रवाई करें। अगर इसके बावजूद भी जो है वो सुनवाई नहीं होती तो MPA। जी सही, बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी आपका। और अब बात करेंगे मौसम की। कराची में तवील गर्मी के बाद मौसम खुशगवार, शहर में मानसून का पहला स्पेल बरसने से गर्मी की शिद्दत में भी कमी हुई है। शहरी मौसम एंजॉय करने साहिल पर पहुंचे, कोई चटपटे खाने तो कोई ठंडी हवाओं से लुत्फ अंदोज हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, शहरी मौसम को एंजॉय करने के लिए साहिल पर पहुँच चुके हैं, चटपटे खाने खाए जा रहे हैं, ठंडी हवाओं से लुत्फ अंदोज हुआ जा रहा है। मज़ीद क्या अहवाल है जानते हैं हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत से। नमरा, बताइएगा। जी, शहर में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ है। कल सारा दिन बादल बरसते रहे हैं, उसके बाद मौसम में कुछ तब्दीली आई है, दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ हुए। आज भी सुबह में कुछ गर्मी की शिद्दत देखी गई, हब्स बरकरार रहा, लेकिन दिन के बाद जो है वो गहरे बादल छाए, उसके बाद हवा भी चलना शुरू हुई और उसके बाद मौसम भी खुशगवार हुआ। शहरियों के चेहरे भी इस हवाले से खिल उठे हैं और मौसम को एंजॉय करने के लिए, हर तरीके से उस मौसम को एंजॉय करने के लिए जो है वो घरों से निकल रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर साहिल कराची वालों के लिए एक अहम ऐसी जगह है कि
जहाँ मौसम की गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो तब भी वो साहिल पर पहुँचते हैं, और मौसम में अगर तब्दीली आए, मौसम खुशगवार हो, तब भी वो साहिल का ही रुख करते हुए दिखाई देते हैं। और अब भी यही सूरत हाल है कि शदीद गर्मी के बाद जब अब गर्मी की शिद्दत में कमी आई है, दर्जा हरारत में कमी आई है और अब मौसम खुशगवार हुआ है, तो उसके बाद भी शहरियों ने यहाँ का रुख किया है। कोई चटपटे खाने में मसरूफ़ है, तो कोई ठंडी हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ होता दिखाई दे रहा है। बच्चे बड़े सभी जो है मौज मस्ती में मगन दिखाई देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसी एक फैमिली हमारे साथ जो मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे, ऐसी मौजूद है कि गर्मी की शिद्दत और मौसम के बाद अब जो तब्दीली आई उससे वो लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ साहिल पर बच्चों की सालगिरह मनाने के लिए भी पहुँचे हैं। हमारे साथ फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि सालगिरह के लिए साहिल का इंतखाब क्यों किया आपने? अस्सलाम वालेकुम जी, ये आज मौसम काफ़ी खुशगवार था, तो हम सब लोगों ने यही डिसाइड किया कि आज जो है ना हम अपने अपने बेटे की बर्थडे की सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ साहिल समंदर पे की जाए, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी बेहतर लग रहा है। जिस तरह से गर्मी दिन में हो रही हैं, तो यहाँ तो काफ़ी खुशगवार माहौल है, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं बच्चे भी। तो इस वजह से हमने यहाँ का रुख किया और यहाँ का इंतखाब किया ताकि हम अपने बेटे की बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकें और खूब एंजॉय कर सकें। आप बताएं, सालगिरह के बहाने ही सही, लेकिन ख़वातीन को बहुत कम मौका मिलता है घर से बाहर निकलने का, मौसम एंजॉय करने का। आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे खुश हैं तो फिर माँ बाप भी खुश हैं, क्योंकि वेदर अच्छा है यहाँ का। मतलब अभी जिस दौरान इतनी हब्स हो रही है ये, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। बच्चे भी खुश हैं तो पेरेंट्स भी खुश हैं। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर बच्चे खुश हैं तो वालिदैन भी खुश हैं। बच्चों को खुश करने के लिए अब उन्होंने ये नए तरीके अपनाए हैं कि वो घरों से निकले हैं और जैसे कि साहिल का रुख किया है उन्होंने, और यहाँ पर बच्चों की सालगिरह मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसी तरह दीगर फैमिलीज़ को भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, बच्चे खुसूसी तौर पर, क्योंकि गर्मी की तातीलात भी चल रही हैं। तफसीलात से आगाह कर रही थी। और अब बात करेंगे कराची में लोड शेडिंग से। शहरी परेशान हो गए। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में घंटों लोड शेडिंग ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरियों ने इलाकों से लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा कर दिया। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, लोड शेडिंग की वजह से शहरी परेशान हो गए हैं। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया मज़ीद बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना भी है, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर भी हो रही है। और आपको यहाँ पर आगाह करें कि दौरानिया कम करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से भी, इलाका मकीनों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए, लेकिन शहरियों की नहीं सुनी जा रही। इस पर नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, हमें अपडेट कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी में मौजूद हूँ। अल्लाहवाला टाउन है जहाँ पर लोड शेडिंग की वजह से शहरियों की जो मुश्किलात है उसमें इजाफा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये दौरानिया जो लोड शेडिंग का है वो कोई तकरीबन 10 घंटे से पहले बढ़ा, फिर 12 घंटे हुआ, और अब ये जो दौरानिया है लोड शेडिंग का ये कोई 14 से 16 घंटे तक हो चुका है, जिसकी वजह से अहले इलाकों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है। लोड शेडिंग की वजह से पानी बहरान भी इलाके में बढ़ता जा रहा है, और शहरियों का ही कहना है कि 12 मरतबा दरख्वास्तें दी हैं, 12 मरतबा शिकायत की हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बताइएगा कितनी लोड शेडिंग होती है इलाके में? लोड शेडिंग होती है, इधर 3 घंटे लाइट है, 2 घंटे नहीं है, इसी वजह से 8 घंटे लोड शेडिंग है। मुश्किलात क्या हो रही हैं? गर्मी शदीद है, क्या होता है बताएं? गर्मी तो बहुत है, आपको पता है कराची में कितनी गर्मी है। ये जो अंदर लोग बैठे हुए हैं इनका क्या हाल होगा। अभी बाहर तो हवा है, अंदर फ्लैटों में हवा ही नहीं है, बिजली है ही नहीं, लोग इतना परेशान है। ठीक है, यकीनी तौर पर इस वक्त शहरियों को अल्लाहवाला टाउन में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 12 घंटों से तजावुज़ कर चुका है। 14 से 16 घंटे की इलाके में लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। जी शहरी काफ़ी परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नुमान गुल हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। आशूरा की 2 दिन तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 16 जुलाई और 17 जुलाई को आम तातील होगी। जी हाँ, यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने आशूरा की 2 दिन तातीलात का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया है। 16 जुलाई और 17 जुलाई को आम तातील होगी। 16 जुलाई और 17 जुलाई दिन है आशूरा के, और आशूरा के ये 2 दिन तातील होगी। बाकायदा नोटिफिकेशन भी तातीलात के लिए जारी कर दिया गया है।
आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं जुलाई और 16 जुलाई और 17 जुलाई को आम तातील का ऐलान किया गया है। तातीलात का नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। आशूरा के 2 दिन तातीलात का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आशूरा के 2 दिन जुलाई और 16 जुलाई और 17 जुलाई है और इन दोनों दिनों में तातीलात होंगी और तातीलात का नोटिफिकेशन बाकायदा सिंध हुकूमत की जानिब से जारी किया जा चुका है। और इस पर आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा आज़ाद हमें। बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने आशुरा के 2 दिन आम तहसील का ऐलान कर दिया है। इस वजह से 16 जुलाई और 17 जुलाई को आम तहसील होगी, जबकि मंगल और बुध के रोज आम तहसील का बाकायदा तौर पर महकमा सर्विसेज कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी व निजी सरकारी इदारे बंद रहेंगे। तलीमी इदारों और बल्दियाती काउंसिल में भी आम तहसील होगी। इसके अलावा 52 अथॉरिटीज भी 2 रोज के लिए बंद रहेंगी। जी आज़ाद, हमें बताइएगा, और नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया है और 2 दिन आशूरा के हैं और इसके लिए क्या इंतज़ामात किए गए हैं बिजली के हवाले से और सफाई सुथराई के हवाले से, किस तरह से निज़ाम चलेगा? जी बिल्कुल, सफाई सुथराई के हवाले से सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और महकमा बल्दिया और KMC की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सिंध हुकूमत ने तमाम तरह सरकारी या निजी सरकारी इदारे उनमें आम तहसील का ऐलान कर दिया, जिसका बाकायदा तौर पर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो आपका। यहाँ बात करेंगे मेयर और डिप्टी मेयर का मलीर के इलाकों का दौरा। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क का इफ्तिताह कर दिया। गुडाब टाउन के तमाम यूसी चेयरमैन के इजलास की सदारत भी की गई है। जी हाँ, आपको यहाँ पर बता रहे हैं मेयर मुर्तज़ा वहाब ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क का इफ्तिताह कर दिया है। मेयर और डिप्टी मेयर का मलीर के इलाकों का दौरा हुआ, जिसमें पार्क का इफ्तिताह किया गया है और ये पार्क का इफ्तिताह मेयर मुर्तज़ा वहाब ने किया है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क का इफ्तिताह किया गया है। गुडाब टाउन के तमाम यूसी चेयरमैन के इजलास की सदारत भी की गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा मलीर के इलाकों का तफसीली दौरा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा करमुल्ला और दिल मोहम्मद समेत पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने यूसी 3 घग्गर का दौरा किया है और घग्गर फाटक का ये दौरा हुआ है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क का इफ्तिताह भी किया है। इस पर शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मलीर का जो है तफसीली दौरा किया है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुरादी मेयर कराची के हमरा जो है मौजूद थे, जबकि इसके साथ साथ करमुल्ला वकासी, दिल मोहम्मद समेत पार्टी के रहनुमा भी मेयर कराची के साथ जो है दौरे में शामिल थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने यूसी 3 घग्गर फाटक का दौरा किया है और शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क का इफ्तिताह भी किया है, जबकि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने गडाब टाउन के तमाम यूसी चेयरमैन के इजलास से भी मुलाकात की है और तमाम तर उनके मसाइल सुने हैं और मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई है। मेयर कराची ने यूसी पिपरी का भी दौरा किया है, वहाँ के मसाइल हल करने के अहकामात भी जारी किए हैं, जबकि इसके साथ साथ उनकी जानिब से मलीर प्रेस क्लब का भी दौरा किया गया है और मुंतखब ओहदेदारान से मुलाकात की गई है। मेयर कराची ने सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल जो है तफसीली तौर पर जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार आपका। अब आपको बताएंगे चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी का पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग के सदर फरियाल तालपुर से मुलाकात हुई। चेयरमैन चनेसर टाउन ने फरियाल तालपुर को सिंध की रिवायती चादर का तोहफा पेश किया। वज़ीर बल्दियात सिंध और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न सैयद गनी और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। जी हाँ, आपको अहम मुलाकात के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। ये मुलाकात हुई है चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी की और पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग के सदर फरियाल तालपुर की। जी हाँ, हम मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन चनेसर टाउन की सदर पीपी ख़वातीन विंग के साथ मुलाकात हुई है। चेयरमैन चनेसर टाउन ने फरियाल तालपुर को अजरक का तोहफा भी पेश किया है।
اور اب بات کریں گے بین الاقوامی ہوائی سفر کے ٹکٹس پر ٹیکس میں اضافے کا معاملہ۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کو خط لکھ کر تشویش کا اظہار، اور حکومت سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سفر پر ٹیکس اضافے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہاں پر اہم خبر ہے، بین الاقوامی ہوائی سفر کے ٹکٹس پر ٹیکس میں اضافے کا معاملہ ہے۔ یہ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کو خط لکھ کر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ سفر پر ٹیکس اضافے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو یہاں پر آگاہ کرے ہیں، بین الاقوامی ہوائی سفر کے ٹکٹس پر ٹیکس میں اضافے کا یہ معاملہ ہے، جس میں انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے وفاقی وزیر خزانہ اور محمد اورنگ زیب کو خط لکھ کر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب بتائیے گا ہمیں کیا اپڈیٹس ہیں۔ جی، وفاقی بجٹ میں بین الاقوامی سفر پر جو ٹیکس میں اضافے کی جو معاملہ ہے، اس پہ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایویشن کا جو ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کو خط لکھ دیا، جس میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ احاطہ نے حکومت سے ہوائی سفر پر جو ٹیکس کے اضافے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان میں حالیہ بجٹ میں اچانک سے بین الاقوامی ہوائی جی صحیح، بہت شکریہ اشرف خان آپ کا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا